جاننے کے لیے سبسکرائب کریں مفتی لائق احمد آفیشیل کو اور فیس بک پر بھی فالو کریں۔ ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لنک ہے، فالو کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اس مبارک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو۔ روزوں کی قبولیت کے لیے، اللہ کی نگاہ میں اہمیت پانے کے لیے، روزوں کے کا وقار بڑھنے کے لیے، روزوں کی عزت اور عظمت اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بڑھنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ ایمان۔ روزہ دار اگر ایمان والا ہے تو اس کا روزہ قبول ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہو یا کوئی بھی روزہ ہو، احتساب شرط ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں ہو، ثواب کا یقین ہو۔ جب ایمان اور ثواب کا یقین ہوگا اور پھر وہ شخص روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ تمام کے تمام معاف فرمائے۔ یعنی روزوں کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک حدیث شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، الصیام لا ریاء فیہ، یعنی روزہ اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ میں ریاکاری ہوتی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمام ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو روزہ رکھتے ہیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہوں اور ہم سے کوئی ریاکاری ہو جائے، ہم سے کوئی دکھاوا ہو جائے، دن بھر کا بھوکا رہنا، دن بھر کا پیاسا رہنا اور پریشانی پہ پریشانی جھیلنا سب بے سود اور بیکار ہو جائے۔ فرمایا صیام لا ریاء فیہ۔ پھر فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں دوں گا، اس لیے کہ یہ میرا بندہ میری وجہ سے کھانا بھی چھوڑتا ہے، میری وجہ سے پینا بھی چھوڑتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، روزے کی اہمیت بیان فرمائی، فرمایا نوم الصائم عبادت، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اس کا سونا ہی عبادت میں لکھا جاتا ہے، وَصُمْتُهُ تسبیح، اور اس کا خاموش رہنا بھی تسبیح کہلاتا ہے، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، اور اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو کر کے جب اس کا ثواب بڑھتا ہے تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں کتنا ثواب عنایت فرما دے، یہ تو اللہ کی کریم ذات ہی جانتا ہے۔ اور فرمایا وَدُعَاهُ مُسْتَجَابٌ، اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، اور اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ یعنی روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہے تو ایک طرف کچھ سوئیں، آرام کریں، چین و سکون کے ساتھ رہیں، لیکن وہ بھی ثواب میں لکھا جا رہا ہے، سونا ثواب میں لکھا جا رہا ہے، خاموش رہنا تسبیح میں لکھا جا رہا ہے، عمل بڑھتا رہتا ہے، دعا قبول ہوتی رہتی ہے، گناہوں کا ستیہ ناش ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری حدیث شریف میں فرمایا، لو ان رجلا صام یوما تطوعا، اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے،
नफली रोजा रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत और फजीलत तो बहुत ज्यादा है कि एक एक रोजे के बदले में एक एक नेकी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 70 नेकियां इनायत फरमाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स नफली रोजा रखता है रमजान के अलावा भी, अब अंदाजा लगाइए कि जब रमजान के रोजे नफली रोजों के मुकाबले में रमजान के रोजे नफली रोजों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अहमियत वाले हैं, बहुत ही ज्यादा अजमत वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इनका थवाब है, बहुत ही ज्यादा इनके बदले में अज्र मिलता है कि अगर कोई बगैर किसी जरूरत के, बगैर किसी परेशानी के रोजा रमजान का छोड़ देता है, फिर उसके बदले में पूरी जिंदगी रोजा रखे, तो वो बरकत, वो असमत, वो फजीलत उसको हासिल नहीं हो सकती। एक दूसरी हदीस में, एक पाकीज़ा हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन साम यौमन ततव्वा, कि अगर कोई शख्स नफली रोजा रखे। अब इस हदीस के जरिए से आप रमजान शरीफ के रोज़ों की फजीलत और अहमियत और मर्तबा आप समझने की कोशिश करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नफली रोजा रखे अल्लाह की रिदा की तलाश में, और फिर वो शख्स को ज़मीन और आसमान के दरमियान जो खला है, यानी जो ये खाली जगह है, इसके सोने से भर दी जाए और वो सोना उस रोज़ेदार को दे दिया जाए। लम यस्तग़फिर तवाबा व यौमिल इंसाफ, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान पाए जाने वाले खला को अगर आप सोने से भर दें, अब अंदाजा लगाइए कि वो सोना कितना ज्यादा होगा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में इस नफली रोजे का थवाब जो अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाएंगे, वो इस सोने से भी कहीं ज्यादा अहमियत वाला होगा, जो सोना जमीन और आसमान के दरमियान खला को खोल दिए। और इस नफली रोजे के मुकाबले में रमजान के रोजे की फजीलत का कहना ही क्या है, वो 70 गुना फजीलत रखता है। एक आम अमल जो नफल अमल कहलाता है, वो रमजान के महीने में फर्ज का दर्जा इख्तियार कर लेता है, और जो फर्ज है वो 70 गुना हो जाता है। एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी आते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करते हैं, शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अन्नका रसूल, अगर मैं गवाही दूं, अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अगर हमें इस बात का यकीन हो जाए और मैं इकरार करूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे प्यारे यानी रसूल हैं, वसल्लैतु सलावातिल खम्स, और नमाज़ें अदा करूं, वसुमतु रमज़ान व कुन्तु, रमज़ान के रोज़े रखूं, शब्बे तारी करूं, तरावीह पढ़ूं, व आतैतु ज़कात, और ज़कात की अदा करूं। तो मेरा क्या मकाम होगा, तो मेरी क्या हैसियत होगी अल्लाह उसके रसूल की निगाह में। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माता अलाहा, जो शख्स इन सिफात के साथ मर गया, जिस शख्स का इंतकाल इन खूबियों के साथ हुआ कि वो अल्लाह को एक मानता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता हो, नमाज का पाबंद हो, रोज़ा भी रखता हो, और साथ ही साथ अगर वो मालदार हो, ज़कात भी देता हो, तो ऐसा शख्स जब मरेगा, जब वो दुनिया से रुखसत होगा और अल्लाह की अदालत में हाजिरी का वक्त आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसे नबियों के साथ उठाएगा मैदान महशर में, सुलह के साथ, सिद्दीकीन के साथ उठाएगा,
और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह से दो उंगलियों में इशारा करके फरमाया, यानी ये अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जे को तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनके आशिकों में, उनके चहीतों में, उनके प्यारों में, उनसे मोहब्बत करने वालों में, उनके शहदाइयों में, उनके फिदाइयों में इसका शुमार होगा। ये मामूली बात नहीं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने साथ ही ये भी इरशाद फरमा दिया, मा लम यहिक वालिदैन, जब तक कि वालिदैन की नाफरमानी ना करे। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह को भी मानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है, नमाज का पाबंद है, रोज़ों का पाबंद है, मालदार होते हुए ज़कात भी अदा करता है, इसी तरह से और दूसरे अमाल सालिहा अंजाम देता है, लेकिन अगर वालिदैन का नाफरमान है, अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करता है, उनके हुकूक अदा करने में सुस्ती बरतता है, या उनके अहकाम की सरकशी करता है, फरमाबरदारी नहीं करता है, उनको तसल्ली नहीं देता है, उनको ढारस नहीं बताता है, उनको आराम नहीं देता है, उनको सुकून नहीं देता है, तो ऐसा शख्स कितना ही पाक पवित्र क्यों ना बने, कितने ही रोज़े नमाज का पाबंद क्यों ना हो, कितने ही वो हज पे हज करने वाला हो, ज़कात पे ज़कात देने वाला हो, रोज़ों पे रोज़े रखने वाला हो, नमाज पे नमाज पढ़ने वाला हो, अल्लाह की निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह की निगाह में उसका कोई मकाम नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में उसका कोई मकाम नहीं। मालूम ये हुआ कि हम दीनदार तभी कहला सकते हैं, हम मुत्तकी परहेज़गार तभी कहला सकते हैं, सच्चे पक्के मुसलमान हम तभी कहलाने के मुस्तहिक हैं, हम तभी अल्लाह उसके रसूल की निगाह में मुत्तकी और परहेज़गार हो सकते हैं, दीनदार हो सकते हैं, मुस्लिम सही मानू हो सकते हैं, सही मानू मोमिन उसी वक्त हो सकते हैं जब अल्लाह को ईद मानते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हो, नमाज़ों की पाबंदी करते हो, ज़कात भी देते हो अगर मालदार हो, रमज़ान शरीफ के रोज़े भी रखते हो, और साथ ही साथ वालिदैन की फरमाबरदारी भी करते हो। पर माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं तो अल्लाह की निगाह में रोज़ों की, नमाज़ों की, ज़कात की अदायगी की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को वालिदैन के हुकूक की अदायगी की तौफीक इनायत फरमाए और उनको खुश रखने की तौफीक इनायत फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल पर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।